السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ 7 اور میں ہوں ناجیہ اشر۔ ہمارے آج کے پروگرام کی ٹاپ سٹوریز یہ ہیں۔ بالآخر کرپشن کے خلاف نعروں کے اثرات نظر آنے لگے۔ پاکستان میں کرپشن میں کمی 9 درجے بہتری کے لیے اب 116ویں نمبر پر پاکستان۔ پیناما لیکس کا فیصلہ بھی ہو جانا چاہیے۔ اور معاشرے میں احترام انسانیت کا جذبہ ختم ہو رہا ہے۔ طیبہ کے بعد ایک اور کم سن بچی تشدد کا نشانہ۔ حکومت کو بچوں کے تحفظ اور شفقت کو قانونی شکل دینا ہوگی۔ پیناما لیکس کرپشن سے متعلق ٹرننگ پوائنٹ تھا، جس کے بعد پی ٹی آئی نے کرپشن کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ جماعت اسلامی نے مہم چلائی، پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا۔ نیب، ایف آئی اے اور دیگر اداروں کی کارکردگی پر سوال اٹھے۔ کرپشن کے طریقوں کا پول کھلا، لوگوں کو یہ بھی پتا چلا کہ آف شور کمپنیز بھی کوئی چیز ہوتی ہیں جو جائیداد چھپانے اور ٹیکنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ مختصراً یہ کہ اپوزیشن اکٹھی ہو گئی، دھمکیاں دی گئیں، دھرنے ہوئے، یہاں تک کہ وزیر اعظم کو خود احتساب کے لیے پیش کرنا پڑا۔ اب سپریم کورٹ میں پیناما کیس کی سماعت جاری ہے۔ اپوزیشن بضد ہے کہ مریم نواز لنڈن فلیٹس کی بینیفیشل اونر ہیں، جبکہ حکومت ان کے ٹرسٹی ہونے کے موقف پر ڈٹی ہے۔ عدالت نے آج میاں شریف کی وفات کے بعد جائیداد کے بٹوارے کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ معاملہ ہر دن گزرنے کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ روز عدالت کے سامنے ایک نیا سوال آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کل تک مریم نواز کے دستخط جعلی یا اصلی ہونے کا سوال سب سے اہم تھا۔ آج ان کے بینیفیشل اونر یا ٹرسٹی ہونے پر بات اٹک گئی۔ کیس گول گول گھوم رہا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ اس کیس کا نتیجہ پاکستان میں احتساب کا جو مستقبل ہے اس کو طے کرے گا، جس کا کریڈٹ عمران خان کو بھی جاتا ہے۔ خان صاحب سے کسی کو لاکھ اختلاف صحیح، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم کو عدالت تک لا کر یہ ثابت کیا ہے کہ اب احتساب سے کسی کو استثنا نہیں۔ یہی وہ تمام تر وجوہات ہیں جس کے باعث اب کرپشن سے متعلق پاکستان کے گراف میں بھی بہتری آ رہی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن سے پاک ممالک کی فہرست جاری کی ہے، جس میں پاکستان کا 116واں نمبر ہے۔ ویسے تو یہ نمبر اتنا قابل قدر نہیں ہے، لیکن اگر آپ پچھلی 2 دہائیوں کی بات کریں تو پاکستان کی پوزیشن میں بہت بہتری آئی ہے۔ 1996 کے بعد پہلی بار پاکستان کرپٹ ترین 2/3 ممالک کی فہرست سے باہر نکل پایا ہے، اور صرف 2016 میں اس حوالے سے 9 درجے بہتری ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر پچھلے 1 سال میں کرپشن کنٹرول کرنے کی ہم بات کریں تو پاکستان اس معاملے میں دوسرے نمبر پر ہے، جو قابل فخر بات ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ 2016 میں پیناما کیس کے سامنے آنے کے بعد سے ادارے متحرک ہوئے ہیں، کرپشن میں کمی آئی ہے، لوگوں میں آگاہی بڑھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان کو اس سال 32 پوائنٹس دیے ہیں۔ یہ پروگرام اور اس کا پہلا سیگمنٹ ہے، اسی پر ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ایک بریک۔ دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ 7۔ ویلکم بیک۔ کرپشن کے خلاف نعروں کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ کرپشن سے پاک ممالک کی فہرست میں پاکستان کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے عادل گیلانی صاحب نے، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے وابستہ ہیں۔ بہت شکریہ عادل صاحب آپ کا۔ بہت ہی خوشائن خبر تو ہے یہ، لیکن کس بنیاد پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان کو کرپشن سے متعلق یہ 32 پوائنٹس دیے ہیں؟ 2016 میں کرپشن سے متعلق کون کون سے ایسے شعبے ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری آئی ہے؟ ایک تو یہ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ پاکستان کے 32 پوائنٹ ہے 100 میں سے، پچھلے سال جو ہے 30 پوائنٹ تھے، تو 2 اسکور ہمارا بہتر ہوا ہے، تو دیٹ مینس کہ کرپشن جو ہے وہ تھوڑی کم ہوئی ہے۔ اسی طرح جو ہے پچھلے سال 168 کنٹری تھی، اس میں پاکستان کا رینک جو تھا 117 تھا، اب جو ہے 176 کنٹریز ہیں، رینک جو ہے 116 ہو گیا، تو 9 کنٹریاں ہم سے زیادہ کرپٹ ہو گئی ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں۔ اور ریجن کے اندر ہمارے جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور ایران اور ترکی ہے، اس میں پاکستان کا جو جمپ ہے 9 کنٹریز کا وہ سب سے زیادہ ہے، ہمارے بعد ایران بہتر ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہے کہ کرپشن پرسپشن انڈیکس جو ہے یہ جو نکلتی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، یہ 13 مختلف جو ہے رپورٹس ہیں جو کہ ورلڈ بینک بناتا ہے، ایشیا ڈیولپمنٹ بناتا ہے، امریکن ڈیولپمنٹ بناتا ہے، ورلڈ اکنامک فورم بناتا ہے، اور ورلڈ جسٹس پروجیکٹ ہے، بیٹلین سروے، وہ اپنے اسیسمنٹ کرتے ہیں اور اسیسمنٹ سے وہ اپنی ہر سال رپورٹ نکالتے ہیں مختلف ممالک کی۔ تو جیسے آپ کو میں بتاؤں کہ جو آپ کا ایک ہے رول آف لا انڈیکس، وہ سوال جو کرتے ہیں وہ 5 سوال ہیں، اس کے جواب دیکھ کے پھر وہ کنٹری کو رینک کرتے ہیں اپنے، یعنی گورنمنٹ آفیشل جو ہے اور ایگزیکٹو کیا وہ اپنا کرپشن میں انوالو ہیں
क्या जुडिशरी करप्शन में इन्वॉल्व है, क्या पुलिस करप्शन में आप इन्वॉल्व। इस तरह से बताया, एक तो ये 9 ममालिक ज्यादा करप्ट हैं, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जो हमें डिफरेंस नजर आ रहा है। आपने इसके साथ साथ अदलिया और पुलिस का भी जिक्र किया है। यही मैं पूछना चाह रही थी कि करप्शन से मुतालिक कौन कौन से शोबे हैं, वो कौन कौन से इदारे हैं जहां पर बेहतरी आई है। ये नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। बेहतरी आने वाला जो सर्वे है वो आएगा मार्च में, आएगा करप्शन बैरोमीटर। ये तो है कंट्री के परफॉर्मेंस जो है इन ओवरऑल जो 13 सर्वे है उनमें निकाल के एवरेज टीआई निकालती है और उसके हिसाब से कंट्री की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। ये कोई इंडिविजुअल नहीं है कि एक डिपार्टमेंट बेहतर हुआ या खराब हुआ, वो इसके अंदर नहीं मिलता। अगर जाएंगे तो ये इनके वर्ल्ड बैंक में जाएंगे तो उसके अंदर पता चलेगा कि किसी डिपार्टमेंट में कितनी इंप्रूवमेंट आई है। टीआई का सर्वे उनको लेके और कंट्री को रैंक कर देता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है और बहुत अहम काम है। हर साल ये 20 साल से चल रहा है। यानी इसमें बेहतरी के बाद मैं ये बताऊं कि 1996 में पाकिस्तान वॉज सेकंड मोस्ट करप्ट कंट्री, आज जो है 61st मोस्ट करप्ट कंट्री है। दैट मीन कि हमारा इंप्रूवमेंट काफी है इसके ठीक है। अंदर। गिलानी साहब, एक लंबा प्रोसेस है, जाहिर है उसके बाद ये सब कुछ होना पॉसिबल हो सका है। अब करप्शन में कमी के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। पनामा केस का जो किरदार है वो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हो ना हो इस केस से करप्शन से मुतालिक लोगों को आगाड़ी है और ये भी साबित हुआ है कि कोई भी एहतसाब से पीछे नहीं है, एहतसाब से मुस्तस्ना नहीं है। नहीं, ये केस जो आया है ये तो अप्रैल 4 तारीख को इसकी डिक्लेयर हुई है, जबकि ये सर्वे जो है 2016 15 के एंड और 2016 के जून तक का है। तो पनामा केस इसके अंदर रिफ्लेक्ट कुछ नहीं करेगा। हाँ, मगर ये सर्वे के ये भी क्वेश्चन होते हैं इनके वर्ल्ड बैंक के कि पाकिस्तान के ऑफशोर कंपनियों के अकाउंट शफाफ है कि नहीं है। ये रेगुलर प्रोसेस है उनका, और देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की बाहर अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो टैक्स पेड है कि नहीं है, यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, स्टेट बैंक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर अमल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ें जो है इनके सर्वे में रिफ्लेक्ट होती हैं। वर्ल्ड बैंक के, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, एशिया डेवलपमेंट बैंक के, वो सब इसके अंदर शामिल है। ठीक है। अभी तो ये पाकिस्तान ने 9 दर्जे बेहतरी हासिल कर ली है, लेकिन अब भी करप्शन से पाक ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का जो नंबर है वो तो 116वां ही है, जो किसी भी तौर पर काबिल कदर नहीं है, बेहतर नहीं है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि करप्शन के खिलाफ अब हमें एक दुरुस्त समत मिली है, और अगर इसी समत में हम चलते रहेंगे तो करप्शन से पाकिस्तान का ख्वाब पूरा हो सकेगा? ये बिल्कुल हो सकता है कि अगर हमारे इस मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिंसियरली अपनी बात पे कायम है और ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन करने का जो उन्होंने ऐलान किया है उस पर अमल भी करवाए। हमारे चीफ जस्टिस ने ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन का ऐलान किया, उस पर अमल करवाए। हमारे जो इदारे हैं उसके अंदर ये 2 इदारे अगर ये बिल्कुल सही हो जाते हैं, नैब का इदारा है, अगर नैब के इदारे के अंदर से इनके जो ये पिली बागियन और VR का कानून ख़त्म हो जाता है और करप्शन पे सज़ा होती है, तो यानी जुडिशरी जो है सबसे अहम है। अगर वो सजाएं देती है, अकाउंटेबिलिटी कोड का जो लॉ है नैब का, उसके हिसाब से जब रेफरेंस फाइल होता है तो जज के लिए फ़र्ज है, मस्ट है कि वो रोज़ हेयरिंग करे और 30 दिन में फैसला दे। आज तक सैकड़ों हज़ारों केसेस हुए, किसी जज ने ये नहीं किया और किसी चीफ जस्टिस ने तो पूछा नहीं है। अगर इस चीज़ पे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब अमल करवा दे, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के फैसले 30 डेज में हो जाए, तो पाकिस्तान के जो स्कोर है वो 32 से जो 64 आ जाएगा विद इन 2 ईयर। बहुत शुक्रिया आदिल गिलानी साहब हमारे साथ थे। और अब हम यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं, जिसके बाद बात होगी माशरे में एहतराम और इंसानियत का जज्बा खत्म हो रहा है, बच्चों पर जुल्म बढ़ रहा है। हमारे साथ रहिए। बच्चों पर तशद्दुद, जबरी मशक्क़त, रेप जैसे घिनौने जराइम पर जितनी ज़्यादा बात की जा रही है, जितना शोर मचाया जा रहा है, आवाज़ें उठ रही हैं, उतने ही इस किस्म के केसेस मजीद सामने आ रहे हैं। ये सिलसिला रुक नहीं रहा। कल तक तैयबा तशद्दुद केस की बाज़गश्त थी, तो आज एक और केस सामने आ गया। गुजरांवाला में एक और कमसिन मुलाजमा तशद्दुद का निशाना बनी है। इब्तिदा में ये खबरें आ रही थी कि शायद उस पर गर्म चाय फेंकी गई, लेकिन आज मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद हकीकत वाज़ेह हो गई है। पता ये चला है कि बच्ची के साथ रेप भी हुआ है, उसे जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये भयानक हकीकत है जिसने हमारे माशरे पर सवालिया निशान लगाया है, क्योंकि पाकिस्तान में ये सब कुछ पहली बार नहीं हो रहा। सिर्फ यही 2 बच्चियां इस तरह के हालात नहीं देख रही हैं, ऐसे बच्चों की तादाद करोड़ों में है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज की रिपोर्ट उठाकर देखें तो 2004 तक पाकिस्तान में घरों में मुलाजमत करने वाले बच्चों की तादाद 2,64,000 थी। वक्त के साथ साथ ये तादाद बढ़ती गई और 2012 तक ये तादाद 1,20,00,000 तक जा पहुंची, जिसमें 85 लाख बच्चियां शामिल थीं। यानी ज्यादातर
घरेलू मुलाजमत के लिए बच्चियों को इस्तेमाल किया जाता रहा। 2010 से 14 के दरमियान घरों पर मुलाजमत करने वाले बच्चों पर तशद्दुद के 27 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 24 बच्चों की तशद्दुद के बाइस जानें चली गईं, लेकिन इस सब के बावजूद बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात नहीं उठाए गए। आज तक पाकिस्तान में घरों पर मुलाजमत करने वाले बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी तक नहीं हो सकी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने भी अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने आज ही तैयबा तशद्दुद केस में रिमार्क्स दिए और बच्चियों से मुताल्लिक़ कानून साजी ना होने को अफसोसनाक करार दिया। ये कानून बनाने वालों की गलती भी थी। इसी पर हम बात करेंगे। अब जस्टिस नासिरा जावेद साहिबा हमारे साथ हैं, माहिर कानून भी हैं और समाजी मामलात पर अपनी आवाज़ भी उठाती रहती हैं। बहुत शुक्रिया जस्टिस साहिबा आपका। ये अभी अचानक से नहीं हुआ है, सालों से हो रहा है, रिपोर्ट्स आती रहती हैं, इसी तरीके से बच्चों पर तशद्दुद रिपोर्ट होता रहता है और ये दिन ब दिन मजीद बढ़ रहा है। हुकूमत इस मामले पर कुछ क्यों नहीं कर पा रही, क्यों हेल्पलेस है? ख़ास तौर पे इतने बड़े मुल्क में जैसे हम रहते हैं, ये सब काम होने ज़रूरी हैं, लेकिन जहाँ महदूद हों वसाइल, सबसे पहले हमने इंसानों की फलाह और उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के ये हुकूमत की तरजीहात में शामिल हो तो फिर इसके बारे में कुछ किया जाए। सबसे ज़्यादा इस वक्त अहमियत दी जाती। नासिरा जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है। अगर आप मुझे सुन सकती हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ, एक अरसा लगा, एक प्रोसेस है जो मुस्तकिल माशरे के अंदर डेवलप हो रहा है, जो एहतराम इंसानियत है वो ख़त्म हो रही है। और आज हमने देखा चीफ जस्टिस ने भी तैयबा तशद्दुद केस में इस तरह के बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी ना होने पर अफसोस का इजहार किया। और फिर जब हम अदाद शुमार अभी दिखा रहे थे तो उसके अंदर ये वाज़ेह है कि 2010 से 14 के दौरान इस तरह के 27 बच्चों पर तशद्दुद के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 24 बच्चों की जानें भी चली गई हैं। इस सब के बावजूद पार्लियामेंट में ये मामला कभी क्यों नहीं उठा? ख़ास तौर पर कोई कानून इससे मुतालिक मंजूर क्यों नहीं हो पाता है? जैसे मैंने अर्ज की ना आपको, यहाँ कानून साजी पे इतनी अहमियत दी ही नहीं जाती। जो आ जाते हैं मुंतखब नुमाइंदे, सबसे पहले तो वो कहते हैं कि जी हमें अपने पैसों का कोटा दे, डेवलपमेंट फंड को वो जिस मकसद के लिए सही के लिए इस्तेमाल करे या गलत के लिए करे, उसका कानून साजी से ताल्लुक नहीं होता बस बराह रास्त। ज्यादातर यहाँ जो आप देखेंगे जिस वक्त लेजिस्लेशन की जरूरत होती है तो ऑर्डिनेंस के जरिए लेजिस्लेशन होती है, हालांकि साथ ही असेंबलियां हैं जिस वक्त चाहे उनको समन किया जा सकता है। अब ये अभी पीछे से जो है था कानून करप्शन के ऊपर, उसकी भी उन्होंने तरमीम ऑर्डिनेंस के जरिए की है, इसलिए कि लोग जो है हमारे मुंतखब नुमाइंदे वो अपनी सलाहियतों को इस तरफ मरकूज करते ही नहीं, हालांकि उनका असल काम यही है। ठीक है, एक तरफ तो कानून साजी है, दूसरी जानिब आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का किरदार किस तरह से देखती हैं? क्या ये इदारा अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभा पा रहा है या इसको मजीद फाल बनाने की जरूरत है? देखिए, चाइल्ड लेबर ब्यूरो तो बिल्कुल एक और चीज है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की आप बात कर रहे हैं जी। चाइल्ड लेबर तो ये होया कि बॉन्डेड लेबर जब हुआ उसमें जो बच्चे थे उसके बारे में बॉन्डेड लेबर का लॉ भी बना, लेकिन जहाँ तक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है ना, वो कम है और वो इतने फाल नहीं है जितने होना चाहिए। आबादी हमारी देखें, अभी तो हम फर्दम शुमारी कर ही नहीं रहे, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि इस साल होनी जरूरी है। अगर वो हो जाए तो हमें पता लगे हमारी आबादी 20 करोड़ है, 22 करोड़ है। पहले 3.5 करोड़ थी जिस वक्त ये वेस्ट पाकिस्तान को, अगर आप 1951 में हमारा हुआ फर्दम शुमारी, अब उससे देखिए कि 7 गुना तकरीबन आबादी हो गई है। 7 गुना आबादी के लिए जो सहूलियत होनी चाहिए वो मैसर ही नहीं है। ना उस किस्म के वहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हैं, ना क्राइसिस सेंटर हैं, और इन चीज़ों को अहमियत देना जो है वो काम है हमारे लेजिस्लेचर का। उनकी तवज्जो ज़्यादा यही होती है कि जी हमें डेवलपमेंट फंड्स मिले, और ये एक बड़ी अफसोसनाक हमारे यहाँ ट्रेंड हो गई है। और ये डेवलपमेंट फंड को जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे और लोगों की तवज्जो नहीं मरकूज़ करेंगे लेजिस्लेशन की तरफ, और ये जो जिस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं इनको हम ज़्यादा उजागर नहीं करेंगे, तो लोग बेहिस हो चुके हैं। और ये हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा सानिया है, बेहिसी जो है। इन चीज़ों पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है और उसकी तरफ तवज्जो नहीं जा रही। अब इसके जो चाइल्ड अब्यूज़ के अलावा जो ये अस्पतालों में देख लें जो और मरीजों का हाल है, ये सारे जो ह्यूमन
एलिमेंट है ना, उसकी तरफ हम तवज्जो ही नहीं जस्टिस साहिबा, फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? अब हम अपने बच्चों को बचाने के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस किस्म के इक़दामात उठाएं? क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जिसकी हम बात कर रहे थे, वो काम तो कर रहा है, बेहतर कारकर्दगी का दावा भी करता है, लेकिन उसके बावजूद अगर बच्चे हमारे माशरे निशाना बन रहे हैं तो फिर क्या किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए इस तरह के वाक़यात को? चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की पहले से ज़्यादा अच्छी हुई होगी कारकर्दगी, लेकिन जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया, अगर आबादी 7 गुना बढ़ जाए तो 7 गुना ये इदारे तो यकीनन नहीं बढ़े, ना वो उनकी फालियत जो है वो 7 गुना ज़्यादा हुई है। तो सबसे पहली बात, अब चाहे किसी को ये अच्छा लगे या ना लगे, या कहें कि जी ये मौजू से हट गई है, जब तक हम अपनी आबादी को महदूद नहीं करेंगे हमारे पास इन सवालों के कोई जवाब हो ही नहीं सकते। एक घर में 6-6, 7-7 बच्चे, रात को जिस वक्त बच्चों को सुलाने का, उस वक्त माँ जब बच्चों को गिनती है तो उसको पता लगता है कौन सा बच्चा मौजूद है और कौन सा नहीं मौजूद। फिर उनको गली मोहल्ले में ढूंढते हैं, गटर में गिर गया, कोई उठा के ले गया, कि बच्चे के साथ क्या हुआ, फिर खुद जाके बच्चों को फरोख्त कर देते हैं गुर्बत की वजह से। एक तो बहुत बड़ा जुर्म जो है हमारे माशरे में वो ये है कि आधी आबादी हमारी खते गुर्बत से हमारे माशरे का अलमिया है, माशरे का अलमिया। बहुत शुक्रिया नासरा जावेद साहिबा हमारे साथ थी। बच्चे मुस्तकबिल का मेमार हैं, अगर हमने जल्द उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं किया तो फिर रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद ना रखें। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।